So a very good morning, dear students. So today we will see how to find out the argument. Okay, argument is nothing but what? Finding the angle made by the complex number. Okay, but its value depends on your complex number is present in which axis, on which axis, or in which quadrant. So let us see that. Okay, so the first case which we saw yesterday, it was on what if your point is on. Suppose you're having a complex number like this. That means only real part is present and no imaginary part. And suppose A is also positive. All right. So what is the corresponding coordinate, kids? Corresponding coordinate. A comma 0. Yes, right. So corresponding coordinate would be A comma 0. Now we'll plot this on XY plane and we'll see what is the angle, what angle is being made by this complex number. So this is my x-axis and this is my y-axis. So, and this is my origin. So where this A comma 0 will come? On x-axis. On x-axis. On x-axis, right? Because A comma 0, y coordinate is 0 and on x-axis only your y coordinate is 0. And since A is positive, so it will come on positive x-axis. So suppose this is my point A comma 0. So my complex number, my given complex number lies on positive x-axis. So what is the angle made by this complex number? Can you see any angle which is made by this complex number? No, ma'am. How do we measure the angle? We always measure the angle from the positive x-axis. So suppose here is my point, complex number. So this angle I have to measure. But since here you can see clearly in this graph that my point is lying on positive x-axis, so there is no angle made by this complex number, right? So कुछ movement ही नहीं है, कुछ shift ही नहीं है, तो इधर मेरा angle क्या हो जाएगा? This angle will become 0. So you will say कि there is 0 degree angle, or argument is what? 0. Is this case understood to all of you? Yes, ma'am. Yes, Now the case 2 was, suppose I'm having a complex number like this. That means only imaginary part is present and no real part. And also imagine that B is positive. Okay. So corresponding coordinate क्या हो जाएगा? 0 comma B. Correct. 0 comma B. And 0 comma B lies where? Y-axis. On y-axis. Yes, it will lie on y-axis. So suppose this is my y-axis, this is my x-axis, and this is my origin 0, 0. So 0 comma B will lie on y-axis, since on y-axis we have x coordinate 0. So when we measure the angle from the positive x-axis to this complex number, so what do you think? कितना angle बन रहा है? 90 degrees. 90 Yes, degree. so you can clearly say it is 90 degrees. So here in this case, your angle will be 90 degree, or in radian, you can say it is pi by 2. I hope this point is clear to all of you. This was the second case. Now let us discuss the third case. The third case is what if you're having a complex number like this? Minus A. That means only real part, but your x coordinate is what? With negative sign. So corresponding point क्या हो जाएगा फिर? Minus A comma 0. Correct. Minus A comma 0. And minus A comma 0 lies where? Negative x-axis. Correct. It will lie on negative x-axis. So suppose somewhere over here is what? Minus A. So this point will be minus A comma 0. So and I have to measure the angle from the positive x-axis till this point. So what you can see कि कितना angle बनते हुए दिख रहा है आपको? 185. 180 degree. Absolutely right. So it is 180 degree, or in radian you can say it is pi. Is this case understood to all of you? Yes. Yes, ma'am. All right. Now case 4. What if my point is like this? That means only imaginary part is there and no real part, and imaginary part is what? Negative. So corresponding coordinate क्या हो जाएगा? It will be, yes, 0 comma minus B. So it lies where? On Negative y-axis. correct. So it lies on negative y-axis. So this is my, okay. So somewhere suppose here is my minus B. So coordinate would be 0 comma minus B. Okay. So and I have to measure the angle from the positive x-axis till this point. So what you can see, what is the angle?
270. 270 degree. 270 degree, or you can say it is 3 pi by 2, right? But this is in anti-clockwise direction, no? Anti-clockwise. But what if Yes, I ma'am. go in clockwise direction, then what will happen? What if I go in Minus clockwise direction? Minus Minus. 270. So the angle is what? So when you measure the angle in clockwise direction, the angle becomes negative. And clearly you can see कि कितना angle बन रहा है? It is 90 degree. Na? So you will write 90 minus pi by 2, or you can write minus 90 degree. Is this clear to all of you? This is for clockwise direction, when you measure the angle in clockwise direction. I hope ये चारों cases आपको समझ में आए. Shall I go to Yes, the ma'am. remaining 4 cases? Any query, any doubt to anybody? और किसी को ऐसा कोई है जो नहीं समझा एक भी केस उसको कि कैसे एंगल बन रहा है? Is there anyone? नहीं मैम समझे. समझा? Okay, very good. So now we'll see the table. So you can see positive x-axis, your angle is what? 0. Then on positive y-axis, your angle is what? Pi by 2. That means you will get a graph like this. So you, somewhere here is going to be a point. So your angle will be 90 degree. Positive x-axis, when your point is lying on this positive x-axis, so you can see there is no angle made by this point. Then when you will see the negative x-axis, so your point will be on this. So when you measure from the positive x-axis, so you can see that पूरा क्या हो रहा है? 180 degree हो रहा है. And when your point is on negative y-axis, that means somewhere here is going to be a point. And when you measure the angle in anti-clockwise direction, then angle is what? 3 pi by 2. Or you can write or minus pi by 2. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now we'll Yes, see ma'am. the remaining 4 cases. Now case number 5. Suppose you're having a complex number like this, z equals to a plus ib, where a and b are what? Both positive. Okay. So where you, so corresponding coordinate क्या हो जाएगा? Corresponding coordinate will be a comma b. Now in which quadrant both the coordinates are positive? Quadrant. First. In which quadrant? First Yes. quadrant. In first quadrant we have both the coordinates positive. So suppose on x-axis we'll go till a, and on y-axis we'll go till b. And suppose somewhere over here is my point a comma b. Now you join this line from the origin, and the angle made by this point from the positive x-axis is your theta. तो कैसे निकालने का थीटा कैसे बताया था मैंने? एंगल कितना बन रहा है कैसे निकालते हैं? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये सामने वाला डिस्टेंस कितना होगा? B. b, करेक्ट. B. तो कैसे मेजर करते हैं हम थीटा? इट इज tan theta is equals to tan theta क्या होता है? Opposite upon adjacent. So it will become b upon a. So your theta will be tan inverse of b by a. So this is the formula when your point lies in first quadrant. Is this case understood to all of you? So when your point lies in first quadrant, then your theta will be tan inverse of b by a. Now let us discuss the case number 6. Suppose you're having a complex number like this, a minus a ib. So corresponding coordinate would be minus a comma b. Now x coordinate is negative, y coordinate is positive. Where it is going to lie? Second. Yes, it is Second going to lie in second quadrant. So it is going to lie in second quadrant. So till on negative axis, I'll go till minus a. On y axis, since y coordinate is positive, so I'll move upward. So somewhere here is my point minus a comma 0. Now immediately join this line with the origin. So this is my origin. Now I have to measure the angle made by this point. ये मेरा point है, ठीक है? And I have to measure the angle from the positive x-axis. तो ये angle कितना होगा? क्या लगता है आपको? What is this angle? क्या लगता है आपको कितना होगा? Come on, say what do you think कि कितना angle बनते हुए दिख रहा है? इस diagram like समझ में आ रहा है diagram? Yes ma'am. हाँ, तो बताओ जरा कितना angle आपको लगता है? Sorry? 134. Pi by 2 plus. हाँ, pi by 2 plus what? Pi minus Plus theta. Theta. Pi plus theta or pi minus theta? Who said that? Pi minus theta.
हाँ व्हाट ये यू थिंकिंग है कि ये एंगल कितना होगा? ये जो रेड कलर में मैंने जो ड्रॉ किया है फ्रॉम दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आई हैव डिनोटेड दिस एंगल बाय थीटा। ये थीटा कैसे निकालोगे, क्या लगता है आपको? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई पाई रूट 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाई रूट 2 पाई बाय रूट 2। व्हाई आर यू सेइंग दैट पाई बाय रूट 2? 45 का पाई बाई रूट 2 होता है ना। तो हाँ हाँ हाँ, वो तो बात की बात है, तुम तो वैसे रॉन्ग बता रहे हो। तुमको कैसे पता चला कि 45 भी एंगल पे प्लेस्ड है? सी लिसन, मैंने ये रैंडमली ड्रॉ किया है ये डायग्राम, ठीक है, रैंडमली। इसका मतलब ये नहीं है जैसे अभी आई एक्सप्लेन यू। वेट, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया वो रैंडम ड्रॉ किया अभी, ठीक है। मैंने ये इधर ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली सेंटर पे मतलब ये 45 डिग्री बनाना है। नो नो नो, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 45 डिग्री पे ही है। कुछ भी हो सकता है एंगल, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये रैंडमली ड्रॉ किया है। 45 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, 45 डिग्री से कम पे भी ये प्लेस्ड हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज अ रैंडम लाइन, ओके, डोंट कंसिडर इट कि ये सेंटर में ही है। ओके, तो 45 डिग्री जो आप बोल रहे थे वो तो ऑप्शन गया। 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, अगर तुम 180 माइनस थीटा बोल रहे हो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है उसमें से थीटा निकाल रहे हो, मतलब ये पोर्शन निकाल दे रहे हो। बट ये पोर्शन तो आपको पता ही नहीं है कितना है, तो कैसे बताओगे? वो पोर्शन तो आपको पता ही नहीं कि कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? थीटा तो आपको निकालना है। हाउ कैन यू से दैट? दस एंगल आई वांट टू नो कि ये जो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -a,0, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कितने एंगल पे प्लेस्ड है। मतलब ये ऐसा है आपका, ऐसा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है -0, तो यू वांट टू मेजर दिस एंगल, ये एंगल मैम कितना है? ये वाला तो 90 होगा ना। 90 कैसे लग रहा है तुमको? एक्स और वाई वाला में उसमें तो पहले वो 90 बनाएगा फिर हाँ वो तो यस यस, अगर हाँ इतना तो 90 है, ये तो मुझे पता है, इतना 90 ये है। वाला बट हाँ, बट ये कितना एंगल है वो तुम्हें पता है क्या? नहीं। डिड यू गेट माय क्वेश्चन? यस ओके, सो ये आपका पॉइंट है -a,0 में थोड़ा अलग से, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा -a हो गया, ये मेरा b हो गया। आई वांट टू मेजर दिस एंगल, ये एंगल कितना है? अब तुम बोल रहे हो कि π/2 से ज्यादा होगा, दैट इज राइट। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 फॉर्म होते हैं ना। तो ये तो पता यस चल मैम। रहा है कि इट इज गोइंग टू बी मोर देन 90 डिग्री, बट मोर देन 90 फिर भी हाउ मच? मोर देन 90 भी कितना, 90 से ज्यादा और कितना रहेगा? तो ये एंगल हमको निकालना था। अगर मुझे ये एंगल मिल जाता है तो मैं 90 प्लस ये एंगल कर दूंगी तो मुझे पूरा थीटा मिल जाएगा कि नहीं? यू ऑल एग्री विद दिस यस व्हाट आई एम मैम एक्सप्लेनिंग? यस अगर मैम। 90 वो जो 90 से ज्यादा, और ये जो एंगल मुझे पता है, दूसरा कलर यूज करती हूँ मैं मुझे अगर ये तो दिख ही नहीं रहा है। अगर मुझे ये एंगल पता चल गया ये एंगल कितना है, तो 90 डिग्री में इतना तो मुझे पता है, इतना 90 डिग्री, 90 डिग्री में ये एंगल ऐड कर दूंगी तो आई गेट दैट। ओके, या फिर व्हाट एल्स आई कैन डू, व्हाट एल्स आई कैन, सब कुछ 90 90 90 कुछ कर रहे थे कुछ स्टूडेंट्स। तो व्हाट आई कैन डू, आई नो कि दिस मच इज, हाँ ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल है? 180। 180 180 डिग्री है, करेक्ट, 180 डिग्री है, आई नो दैट 180 डिग्री मतलब पाई। बट ये कुछ एंगल एक्स्ट्रा हो गया, राइट? कुछ एंगल्स क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गए। कौन सा एंगल एक्स्ट्रा हो गया? कैन यू सी दिस? ये एंगल एक्स्ट्रा है कि नहीं? ये एंगल एक्स्ट्रा आ गया। पाई सपोज दैट माइनस एंगल आई एम टेकिंग हियर एज अल्फा। तो अगर मैंने पाई में से ये एंगल जो है अल्फा अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? थीटा बचेगा कि नहीं? यू ऑल एग्री विद दिस? यस मैम। यस। यस तो ये एंगल में अल्फा निकालते, ये अल्फा में निकालूंगा। अल्फा निकालना इजी है, बताओ कैसे अभी अल्फा निकालोगे? ठीक है, तो ये जो रेड पोर्शन है, जो रेड सर्कल मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है, 180 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। 180 डिग्री मतलब पाई। और ये जो ग्रीन कलर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो कितना हो गया, वो एक्स्ट्रा एंगल है। हमें ये जो पर्पल कलर वाला एंगल है ना, पर्पल जो सर्कल ड्रॉ किया है वो एंगल निकालना है। बट ये अल्फा एंगल कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये एंगल में से, ये पूरे एंगल में से अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन अगर निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? ये पोर्शन बचेगा कि नहीं? यू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट? यस हेलो, यस हेलो, मैम।
ठीक है, समझा? अभी अल्फा निकालते हैं, अल्फा कैसे निकालेंगे, भाई हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। ये डिस्टेंस कितना बताओ जरा। B. यस इट इज बी। और एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट कितना है, Minus. ए। माइनस यस माइनस ए, राइट। ठीक है, सो हम क्या हो जाएगा, पाई माइनस ये अल्फा क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स ऑफ b बाय mod of minus a. Understood? So this is the formula for calculating theta when your point lies in second quadrant. So you will get answer as theta equals to pi minus tan inverse of mod में है तो आंसर क्या हो जाएगा, b by a हो जाएगा। So ये एंगल, this is the formula when your point lies in second quadrant, pi minus tan inverse of b by a। और b और a कहाँ से मिलेगा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिए रहेगा, वहां से आप a और b निकाल सकते हो। Is this case understood to all of you? Yes, ma'am. यस मैम। नाउ मैं आपको थर्ड केस दे रहा हूँ, मुझे थर्ड सॉरी इसके बाद का जो केस है, केस नंबर 7, वो आप मुझे बताओगे अगर ये आपको समझा है अच्छे से तो। सपोज माय पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइक दिस, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ए लाइज इन विच क्वाड्रेंट, Third. थर्ड क्वाड्रेंट। बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, तो मेरा पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सपोज ऑन एक्स एक्सिस आई गो टिल माइनस ए, ऑन वाई एक्सिस आई गो टिल माइनस बी। So somewhere over here is my point minus a comma minus b. You understanding मैं diagram कैसे draw कर रही हूँ? यस मैम। All right. Now you join the point with the origin. ठीक है? Now I want to measure the angle from the positive x-axis till this point. तो ये एंगल मुझे निकालना है। क्या लगता है आपको एंगल कितना होगा? पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस Yes, correct. तो अभी हमें तो पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना होता है, पाई। कितना एंगल एक्स्ट्रा हो गया, कितना एंगल एक्स्ट्रा, ये एंगल क्या एक्स्ट्रा, तो ये हमें निकालना होगा। कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल, यस मैम। कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल? यस, कैसे हो जाएगा, पाई प्लस, बताओ मैं व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर, टेन ऑपोजिट। इनवर्स यस, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों आप क्या लोगे, मॉड में ले लोगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर थीटा व्हेन योर पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इज दिस केस अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, Now ma'am. last case we'll discuss case 8. लास्ट केस कौन सा बच्चा जरा बताओ तो, लास्ट केस कौन सा होगा? ए माइनस आई बी। Minus imaginary axis. ए एंड माइनस आई बी होगा, राइट। करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा माइनस बी, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ। फोर्थ। Fourth. लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। So let us see कि एंगल कितना बनेगा। So since my I'll go till A and minus B, and this is my corresponding point A comma minus B. Now join this line with the origin, you will get this. So I want to measure the angle from the positive x-axis. There are two ways. You can calculate from this to anti-clockwise direction, or you can calculate from clockwise direction. जब clockwise direction में हम calculate करते हैं तो क्या होता है, एंगल नेगेटिव हो जाता है, that's it. तो ये थीटा आप निकाल सकते हो क्या, जरा बताओ थीटा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है? 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा। हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, बट मैं कौन सा तरीका मैं क्लॉकवाइज मेजर कर रही हूँ। क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आंसर, Minus पाई बाई minus b. माइनस, हाँ Alpha. माइनस, और तो ये Tan एंगल कैसे inverse of निकालोगे, यस माइनस tan इनवर्स ऑफ, b तो by ये a. क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन ए, तो ऑपोजिट हो गया बी, सिंस इट इज इन नेगेटिव तो मॉड में लगे और बी अपॉन, तो आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ, बिकॉज आई एम मेजरिंग द एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज भी आप जा सकते हो, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। और जब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करोगे तो क्या करोगे आप, ये पूरा एंगल कितना होता है 2 पाई, राइट। 2 पाई में कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये थीटा एक्स्ट्रा हो गया है ना, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट, ओके। आई होप दिस थिंग क्लियर। तो अगर 2 पाई में से ये थीटा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया तो मेरे पास बचता क्या है, ये वाला पोर्शन बचता है। क्लियर है आप सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द केसेस।
सो अभी आप देख लो ये टेबल आपको याद रहना चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. I'll just go through once. Shall we start with the problems now? Yes, ma'am. Shall we start with the problems now? तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है? आप मैं एक क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करती हूँ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स यू विल टेल मी कि कितना एंगल होगा. सपोज दिस माय कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हाफ माइनस √3/2. ठीक है, तो अब बताओ इसका आपको कैलकुलेट करना है आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट मतलब क्या निकालना है आपको? थीटा निकालना है आपको. तो कैसे निकालोगे आप? पहले देखो आंसर. तो पहले आप क्या देखोगे? आप ले लो, ए क्या है आपका? माइनस हाफ हो गया, कंपेयर करो. और बी क्या हो गया आपका? -√3/2. करेक्ट. नाउ ये आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है? थर्ड -half. quadrant. Third Yes, quadrant. lies in third quadrant. So it lies in third quadrant. तो आपका एंगल कितना बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में? बताओ ये तो पता 5 plus अरे इधर थर्ड क्वाड्रेंट में 5 आपका plus सॉरी 5 plus tan inverse b upon a. करेक्ट, बी अपॉन ए. और बी और ए नेगेटिव भी रहेंगे तो उनको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है? यस मैम. सो ये हो जाएगा √3/2 अपॉन हाफ. तो 2 2 will get cancelled. Now √3 pi plus tan inverse of √3. And now you tell me कि for which angle tan theta is √3? 60 degree. 60 degree. 60 डिग्री. वेरी गुड. 60 डिग्री मतलब रेडियन में कितना होगा? π/3. 5/3. तो ये कितना आता है आंसर? 4π/3. ना अभी जिनको नहीं पता है कि एंगल कैसे निकालना है, जरा इधर ध्यान देंगे सभी. ये पहला कॉलम में बना रही हूँ थीटा का. थीटा के हम लोग मोस्टली हमारा जो एंगल होता है क्या होता है? 0 डिग्री होता है. देन क्या होता है? 30 डिग्री होता है. देन 60 डिग्री होता है. सॉरी, इसके पहले क्या आता है? 45 डिग्री आता है ना. 45. तो ऑल राइट ऑन 45 डिग्री होता है. देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री. ठीक है. 0 डिग्री मतलब 0 ही रहेगा. 30 डिग्री मतलब क्या? π/6. 45 डिग्री मतलब क्या? π/4. 60 डिग्री मतलब क्या? π/3. और ये कितना होता है? π/2. ये तो आप सभी को पता होगा, राइट? Yes, ma'am. नाउ टेल मी साइन थीटा. अभी साइन का वैल्यू क्या होगा फॉर 0 डिग्री? साइन 0 कितना होता है? 0. 0. ओके. साइन 30? 1/2. 1/2. साइन 45? 1/√2. ये होता है √3/2. देन ये होता है 1. नाउ कॉस में सिर्फ साइन का आपको पता है, कॉस का तो इजीली पता चल जाएगा. सिर्फ इसका रिवर्स करो अभी. उल्टा. ये 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 है ना, तो अभी क्या हो जाएगा? 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0. तो cos 0 1 होता है. ये सब याद रख लो बिकॉज ये हम यूज करेंगे. यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 सब जगह यूज होगा ये. सो cos 0 कितना होता है? 1. cos 30 √3/2. जस्ट रिवर्स करना है आपको. साइन 45 cos 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है ना. अभी अगर साइन और cos पता है तो आप इजीली tan बता सकते हो. tan क्या होता है? इट इज साइन अपॉन cos. तो 0/1 कितना होगा? 0. हाफ अपॉन √3/2 1/√3. 1/√3. देन हाफ अपॉन 1/√2 अपॉन 1/√2 विल बी 1. 1. ये कितना हो जाएगा? √3. ये क्या हो जाएगा? √3 नॉट डिफाइंड. Not तो फिर आता है इसके बाद cot थीटा. cot थीटा क्या होता है? इट इज defined. cos अपॉन sin. नो, cot थीटा क्या होता है? Not defined. अरे Right. हाँ, मतलब पूछिए cot थीटा क्या होता है? cot क्या होता है? cos अपॉन sin. तो cos अपॉन sin को 1/0 नॉट डिफाइंड. this अपॉन this. √3. Yes. 1. And this. So मतलब ये 1 tan by का root. जस्ट रिवर्स कर दो. हाँ, Tan का reverse. यस. फिर आता है sec एंड cosec. ठीक है. sec क्या होता है? Cos. cos का उल्टा. Cos का उल्टा. cosec क्या होता है? Sin का. Sin का Yes, उल्टा. sin का उल्टा. Yes.
तो बस आपको साइन का याद है तो कॉस का बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी इजीली लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए था, tan ऑफ √3। तो tan का कॉलम देखो, tan का रो देखो, √3 कौन सा एंगल के लिए √3 होता है, π/3, इसलिए इधर π/3 आया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. So you all Yes, can ma'am. take the screenshot of this table so that you all can remember the values of sin, cos, tan, कितना एंगल पे कितना वैल्यूज होता है उसका। Now I'll be giving you one question for which you are going to find out its angle. So take down the question and tell me कि ये एंगल कितना बना रहा है। Do it and tell me कि कितना एंगल बना रहा है ये। This is the second question and the last question. चलो तीनों का एंगल निकालो, बताओ कितना आ रहा है। मैम Yes, फर्स्ट वन π/4 है क्या आंसर? 5/4 आता है। Okay, we'll check. मेरा So ये करेक्ट पॉइंट नहीं कौन हो से सकता क्वाड्रेंट में? लेकिन पॉइंट -1, 1. सो आंसर क्या होता है थीटा का? इट इज पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b/1 1/1। पूरा आता है मैम। सो ये tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कौन सा एंगल? 45 आंसर यस 3π/4 आता है आंसर। यस मैम, यही है। 3π/4 इज द आंसर। कितने लोगों को आया 3π/4? Harshini has got Pratik. Okay. Only these two okay, Nilesh also. Pradyuman, Shivam, Pooja, Tanisha also. Okay. Good, good. Do the remaining two questions. इनका एंगल कितना आ रहा है? टू π/3 2π/3 you're getting. Okay, तो हमारा सेकंड वाला पॉइंट जो है √3, -1 आता है। इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 नहीं बाय नहीं √3। नहीं tan इनवर्स ऑफ 1/√3 मतलब 4 π/3 नो, π/3 आ रहा है मैम। 4π/3 नहीं, मेरा π/6 माइनस π/6 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का मेरा आया? गलत है। गुड गुड पवित्रा और वैशाली, वेरी गुड। तो द लास्ट वन, और लास्ट वन अभी अच्छे से करो। हाँ, तुम लोग बहुत मिस्टेक्स कर रहा है ना, फिर मुझे और प्रैक्टिस क्वेश्चन देने पड़ेंगे। चलो करो ये। मैम π/3 हो सकता है आंसर? हो सकता है नहीं, यू शुड बी श्योर। π/3 आया मेरा।
5 by 3 हो गया. हाँ मैम. Okay, we'll see that. So 1 comma root 3 lies in first quadrant. Since both are positive, so theta will be tan inverse of root 3 by 1. So it is root 3. So for which angle tan theta is root 3? It is 5 by. Yes, correct. So we'll give you one more question, the last one. Do this, the last one. फाइव पाई बाय 5 pi upon 6. हाँ. 5 5 pi upon 6 are 5 pi Yes, upon ma'am. 6. We'll check that. Yes, ma'am. So Pi root pi 3 upon- by 2 ये half है, lies in second quadrant, तो theta हो जाएगा pi minus tan inverse of half upon 1 by root 3. No, sorry, root 3 by 2. So 2 will get cancelled. So tan inverse of 1 upon root 3 आएगा. So it is 5 by 6. So 5 pi by 6 आएगा. That's correct. ये इसका ये कितना एंगल बना रहा है? बताओ बताओ. Z equals to 4 plus I into 0. कितना एंगल बना रहा है वो? 0. Yes, why? उसी क्वाड्रेंट में रहेगा ना बस, मतलब एक्स एक्सिस पे ही रहेगा ना बस. Yes, it is on positive x axis. तो एंगल कितना हो रहा है? 0 हो रहा है. Very good. Then second one, third one. थर्ड वन 270 Yes, 270. 270, या or you can say, minus 90 or you can 3 say pi by minus 3 2. 90. by 2. 3 pi Yes, by or 2. you can say minus. Next, 90 90. और पाई बाय 2 yes. इधर कितना हो जाएगा? पाई या 180. Yes. So I hope all. Okay, sorry, minus 2 आएगा. So सभी को समझिए एंगल कैसे निकालते हैं. देखा आप लोगों ने, डिपेंडिंग ऑन आपका पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, आप एंगल इजीली निकाल सकते हो उसका, कि वो कितने एंगल पे प्लेस्ड है. वी ऑलवेज मेजर द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. Shall we go to the next topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we'll see the polar form of a complex number. Okay. So what we saw so far, that if you are given any complex number, okay, you were given any complex number, तो आप easily you can plot them on xy plane, right? x axis पे a तक जाओ, y axis पे b तक जाओ, आप easily से क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हो on xy plane. ये जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म. क्या कहते हैं हम इसे? कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, बिकॉज वी नो कि एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पे कितना पॉइंट प्लॉट करना है. बट अगर आपको मैं दूसरा तरीका दूं, अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं कि डिस्टेंस दो, आपको डिस्टेंस पता, सपोज डिस्टेंस है r ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, एंड आपको दे दूं एंगल, तो क्या आप फिर भी प्लॉट कर पाओगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन एक्स वाई प्लेन? कैन यू स्टिल प्लॉट दैट पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन? I have given you the distance of that complex number from the origin and the angle made by this point, made by that point. So can you still plot that point on xy plane? If yes, then how you can plot? Yes, ma'am. कैसे प्लॉट करोगे बताओ जरा. आपको एंगल पता है और डिस्टेंस पता है उस पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन, कैसे प्लॉट कर सकते हो xy प्लेन पे? डिस्टेंस फार्मूला. अरे रे, यू हैव टू प्लॉट करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है. सपोज मुझे क्या दिया आपने? रेडियस दे दिया 2 और एंगल दे दिया सपोज 45 डिग्री. या डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर
from origin is 2 and angle is what 45 degree. कैसे plot करोगे उस point को xy plane पे? That is my question. You know, school days में we used to draw the graphs like using protractor and those rounders. वही मैं वही बोलने वाला था, पॉजिटिव के 2 में जाओ और 45 डिग्री पे करेक्ट. तो अब क्या प्रोट्रैक्टर का वो जो जीरो रहता है सेंटर वाले, वो यू विल कीप ऑन दिस साइड, ऑन दिस थिंग, यू नो, सेंटर पे रखोगे, ओरिजिन पे रखोगे, ठीक है. देन फ्रॉम दैट व्हाट यू विल मार्क, यू नो, 45 डिग्री किधर है. सपोज 45 डिग्री क्या हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये बड़ा लाइन हो गया ना, बहुत बड़ा लाइन हो गया. बट हमारा ये बड़े लाइन में भी एग्जैक्टली मेरा पॉइंट किधर हो गया, ये कैसे पता चलेगा? सो आई हैव वन मोर थिंग विथ मी. व्हाट इज दैट डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज वो 2. तो आपको 2 राउंडर से क्या लेना है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है या फिर 2 मीटर, जितना भी बोला है. You have to keep on this and you have to just cut on this. Don't you think so कि ये जहाँ पे कट करेगा वही मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? Yes or no? You understanding? तो ये मेरा एंगल हो गया 45 डिग्री, ये जो भी थीटा था. Yes, And ma'am. with the help of that radius मैंने इधर रख के क्या किया, राउंडर से कट किया ये ग्राफ को. So मुझे मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा? Still I am able to plot when I am given distance of that complex number and the angle. तो इससे हम कहते हैं पोलर फॉर्म. सो पोलर फॉर्म में आपको क्या दिया रहता है, डिस्टेंस दिया रहता है एंड एंगल दिया रहता है. तो ये दो चीजें आपके रहती है पोलर फॉर्म में. विद द हेल्प ऑफ दीस टू थिंग्स यू कैन स्टिल प्लॉट द पॉइंट्स ऑन xy प्लेन. सो अभी नाउ विल सी कि व्हाट इज अ पोलर फॉर्म. तो कार्टेशियन फॉर्म हमको पता है कि कैसे दिखता है. इट लुक लाइक दिस, z = a + ib. इट इज द कार्टेशियन फॉर्म. नाउ पोलर फॉर्म में क्या रहेगा, पोलर फॉर्म में क्या रहेगा, r and थीटा. तो वो r and थीटा कैसे आता है, दैट वी विल सी. ओके, सो लेट अस सी दैट. So let us plot this point on xy plane. Okay. So real axis, imaginary axis. On x-axis, can you see the blue line on x-axis? यस Yes, मैम. ma'am. So वो distance कितना हो जाएगा, a. Can you see the red line on y-axis? यस मैम. उसका distance कितना हो जाएगा? आई B. और बी हां. Correct. तो ये हमारा point हो जाएगा a, b. Now जो distance इधर है, the same okay, now I connected that point with the origin. Okay, तो origin से हमने connect कर दिया. now जो distance ये इधर है, the same distance will be on this side also. Do you all agree with this? यस. Yes, ma'am. Okay, तो ये भी distance कितना होगा, b होगा, ठीक है. now ये हो गया हमारा थीटा और ये क्या हो जाएगा, r. ये हो गया, क्या r क्या represent कर रहा है, distance. now without me telling you, can you tell me कि ये क्या होगा, r क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आप बताओ. डिस्टेंस है वो तो मुझे पता है, बट कैसे निकालोगे डिस्टेंस? Root of a squared plus b squared. डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला. तो इट विल बी a minus 0 the whole square. तो a minus 0 is a and b minus 0 क्या हो जाएगा? ये किसका फॉर्मूला बच्चों? डिस्टेंस Smart set. मॉड्यूलस. मॉड्यूलस Hey. हमने पढ़ा था. Do you all remember that मॉड्यूलस? Do you all remember that? Yes, ma'am. यस मैम. So this distance is nothing but what? Modulus. So now I can say you that you will be given modulus value and the angle value. With the help of modulus and argument, you can plot the point on xy plane. Okay, so that modulus is nothing but what? As I told you in the previous lecture also, it is the distance of the complex number from the origin. Okay, so here r is nothing but what? It is the modulus value. Now we want to convert a and b in terms of r and theta. So see how am I going to do that? Now tell me sin theta क्या होता है? What is sin theta? adjacent upon hypotenuse. हाँ. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. Opposite upon Opposite hypotenuse. So upon what is the hypotenuse. opposite side of this theta? ए. Theta के side opposite a है. B. हाँ? B. Red line है, red. Theta B. के opposite red है, उसका angle कितना हो रहा है? B हो रहा है, right? तो sin theta क्या हो जाएगा? Opposite upon hypotenuse. Hypotenuse कितना है हमारा? R. R. तो हमसे यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? B मिल जाएगा. तो B क्या मिलेगा हमको? B क्या मिलेगा? Sin B क्या? R times sin theta. Is this right? यस. yes, ma'am, sin Similarly, cos theta क्या हो जाएगा? Cos theta क्या होता है? adjacent upon hypotenuse. Adjacent upon hypotenuse, right?
So you will get this. So from this, I'll get value of A as R times cos theta. So can we see A and B both have been converted to R and theta? Can you see the values of A and B? A, you have got it as R cos theta, and B, you got it as R sin theta. Now, where are you going to substitute this? मॉड्यूलस का फॉर्मूला में ना मॉड्यूलस का फॉर्मूले में क्यों पुट करना है? ये देखो, ये दिख रहा है A plus IB. हमें A और B को रिप्लेस करना था ना, so A और B मिल गया ना. You put it over here. So can you see A की जगह पे मैंने क्या रखा? और cos थीटा करेक्ट. प्लस I. B की जगह पे हम क्या रखेंगे? r sin थीटा. करेक्ट. तो R कॉमन दिख रहा है आप लोगों को दोनों में, तो R कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? cos थीटा प्लस I sin थीटा. Is this clear? Yes, ma'am. yes ma'am So this is the polar form, students. So Cartesian form क्या है? A plus IB. Polar form क्या मिला हमें? R times cos theta plus I sin theta. Clear है? Yes. yes ma'am ठीक है. Where R is what? Where R is? distance Yes. Where R is Modulus. modulus, which is calculated by the formula A square plus B square under root. And theta you all know, depending on the quadrant in which your point is lying, accordingly you will get to know कि theta कितना हो रहा है, angle कितना बन रहा है. So I hope everyone has understood the polar form of a complex number. Yes, students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that's it for the Yes, day. ma'am. We'll discuss the problem in the next class.